Namaskar, Chibai Salam. It is indeed a proud privilege and joy beyond description that our dearly beloved and respected Prime Minister has set foot in the soil of this humble land. यह वास्तव में हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की इस पावन भूमि पर कदम रखा है. With his presence here, the people can hope for assured development, growth, peace and harmony, all the blessings that accompany his gracious arrival. May I now request Honorable Governor Shri Ajay Kumar Balla ji to present a painting to Honorable Prime Minister. Painted by Mark Rangchal, a talented local artist, the painting depicts peaceful coexistence amongst all the tribes residing in Manipur. The young ushers, clad in their respective splendid traditional attires, will present to the Honorable Prime Minister Zomi Shawl. Zomi Shawl reflects a deep connection with nature. Next, Thado Kuki Shawl. This shawl is a symbol of authority and prestige. And Mar shawl called Choimoina Pun. This shawl celebrates achievements and expresses dignity, praise and respect. May I now request Honorable Governor Shri Ajay Kumar Balla ji to present the welcome address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सब डिग्निटरीज, जनसमूह, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शिबाय. It is with deep respect and great pride that I stand before you today in the historic, vibrant town of Churchandpur on the occasion of the Honorable Prime Minister's visit to this beautiful state of Manipur. मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में आगमन और हम सभी के बीच उपस्थित होने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. माननीय प्रधानमंत्री जी बाय एक रोड से लंबी जर्नी करके आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं. उनको एक बार तहे दिल से इसका भी शुक्रिया करता हूं. Churchandpur is not just a geographical location, it's a symbol of rich cultural diversity, resilience and the spirit of unity. The people of this land, representing a mosaic of tribal and ethnic communities, have for generations contributed to the social, cultural and economic fabric of our state and our nation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी यहाँ उपस्थिति चुरचांदपुर और पूरे मणिपुर राज्य के लोगों के लिए अपार प्रेरणा और प्रोत्साहन का सोर्स है. समावेशी विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है. आपके दूरदर्शी नेतृत्व में पूर्वोत्तर को मार्जिन से मुख्य धारा में लाया गया है. द फोकस ऑन कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एक्सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हैज ब्रॉट होप एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज टू आवर यूथ. टुडे एज वी लुक फॉरवर्ड, वी ऑल्सो एक्नॉलेज द challenges that we must face together. Challenges of peace, development and trust. Today is the time to heal and help and look forward with dialogue,
understanding and inclusive governance, I am confident that Manipur will emerge resilient, more united and prosperous. हम सभी अपने समाज को शांति, प्रगति और तीव्र विकास के लिए एक जीवंत स्थान बनाने में योगदान दें. Bringing development to remotest corner and reaching out to the last mile is one of the cornerstones of Viksit Bharat, which calls for inclusive growth. Churchandpur district has always been among one of the top priorities of the state. Being a border district, the government is committed to provide connectivity and essential infrastructure to the furthest hamlet for overall development. At the same time, we as citizens of this country have a bounden duty to safeguard our country and its interests. We cannot afford our land to be encroached or be allowed to be illegally inhabited by people from beyond the borders. Both the state and central government are committed to take effective steps to address this challenge. I would also like to mention about recent natural calamities, especially the cloudburst and flash floods that cut off several villages of Henglap area of Churchandpur. To deal with this, Operation Sahyog was launched by the Assam Rifles, Indian Air Force and District Administration to supply over 6 tons of essential relief to 18 remote villages in Henglap, cut off due to landslides. This swift, coordinated response reached 1,500 villagers with vital rations and supplies. A 3-phase resettlement plan for internally displaced persons is being taken up to settle them at the earliest. Additional security personnel and quick response teams were deployed to further bolster safety and stability. माननीय प्रधानमंत्री जी, आज यहाँ आपकी उपस्थिति आशा की किरण है और साथ ही शांति एवं समावेशी विकास के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि भी है. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति और समर्थन से इस क्षेत्र को खास तवज्जो मिलेगी और इसका मान बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, जिसके लिए मैं यहाँ की जनता की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से तहे दिल से आज आपकी उपस्थिति के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. जय हिंद, जय मणिपुर. May I request Honorable Prime Minister to unveil the plaque to mark the laying of foundation stones of 19 projects amounting to rupees 7,300 crore by the press of a button. Viksit Bharat, Viksit Manipur. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे 7,300 करोड़ रुपए लागत से बने वाले 19 परियोजनाओं की आधारशिला रखने हेतु आधारशिला पट्टिकाओं का बटन दबाकर अनावरण करें. धन्यवाद महोदय. May I request the dignitaries to be kindly seated. With the laying of the foundation stones of these development projects by the Honorable Prime Minister, let us now watch a short film depicting the vision, scope, and impact of these projects. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Manipur is witnessing a new era of transformation through massive investments across sectors. हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है. Today, foundation stones are laid for 19 projects worth more than 7,300 crore rupees. A giant step towards making Manipur economically vibrant and future-ready. Under the PM Divine scheme, super speciality healthcare infrastructure will be established in 5 remote districts: Chandev, Jiribam,
Senapati, Tamenglong and Ukhrul at a cost of over 100 crore rupees. This will bring advanced medical care closer to the people, ensuring better health outcomes and reducing out-of-pocket expenses. Connectivity is the backbone of development. With an investment of over 2,560 crore rupees, the Tengnopal Shangshak National Highway and the projects under the Imphal-Ukhrul-Jesami Economic Corridor under the Bharatmala Pariyojana will transform Manipur's economic landscape. To empower women and ensure their participation in the workforce, foundation stones are laid for 9 working women's hostels worth over 140 crore rupees. These hostels will provide modern amenities, safe living spaces, and an ecosystem for growth. In the digital age, Manipur is preparing for the future. The Manipur Infotech Development Project, with an investment of 550 crore rupees, will promote digital skills, entrepreneurship, and create opportunities in the global IT industry. Education is the foundation of progress. With an investment of over 130 crore rupees under the NESIDS OTRI scheme, 120 high schools and higher secondary schools across the state will be strengthened. Additionally, the infrastructure development of Oriental College, Takyel, funded by the NEC at a cost of 6 crore rupees, will enhance higher education facilities in Manipur. Tourism is a symbol of Manipur's rich heritage and culture. At Ibudhau Marching Polo Ground, infrastructure development worth 30 crore rupees under NESIDS OTRI will boost tourism around this historic site. Further, the Barak Heritage Festival and tourism infrastructure at Koide Bisho Village, Senapati, funded by the NEC at a cost of 4 crore rupees, will showcase the cultural vibrancy of the region. In the field of renewable energy, the installation of a grid-connected SPV power plant at power substations and a 5-megawatt floating SPV power plant at the Thaubal Multipurpose Project Reservoir is being taken up under NESIDS OTRI through MoneyRadar with an investment of 33 crore rupees. These projects will provide clean energy and ensure sustainable power for Manipur's future. Manipur, the powerhouse of sports, will receive a boost with a new multi-purpose indoor hall at Kuman Lampak worth 36 crore rupees, nurturing the next generation of champions. Finally, with an investment of around 3,650 crore rupees, the Urban Roads, Drainage and Asset Management Project will strengthen Manipur's urban infrastructure, improve connectivity, and reduce maintenance costs, enabling more funds for rural road development. From healthcare to highways, from women's empowerment to digital innovation, from sports to sustainable infrastructure, these foundation stones are not just projects. They are the building blocks of a stronger, prosperous, and resilient Manipur. Thank you so much, Honorable Prime Minister. Today, the long-cherished dream of the people of this land has become an amazing reality. May I now take the distinct honor of requesting Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to address the gathering. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि आप जन समुदाय को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान अजय भल्ला जी, राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मणिपुर के मेरे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। मणिपुर की ये धरती
हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन की नई सुविधाओं का निर्माण करेंगे। मैं मणिपुर के आप सभी लोगों को, चुरा चांदपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मणिपुर बॉर्डर से सटा राज्य है। यहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कें ना होने की वजह से आपको जो परेशानी आती रही है, वो मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया और दूसरा, शहरों के साथ ही गांवों तक भी
सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। साथियों, बीते वर्षों में यहां नेशनल हाईवेज पर 3,700 करोड़ रुपए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8,700 करोड़ की लागत से नए हाईवे पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। पहले यहां गांवों में पहुंचना कितना मुश्किल था, आप भी जानते हैं। अब सैकड़ों गांवों में यहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इसका बहुत अधिक लाभ पहाड़ी लोगों को, ट्राइबल गांवों को हुआ है। साथियों, हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। इस पर सरकार 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 400 करोड़ की लागत से बना नया इंफाल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रहा है। इस एयरपोर्ट से राज्य से दूसरे हिस्सों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू की गई है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी मणिपुर के आप सभी लोगों की सुविधाएं बढ़ा रही है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बना रही है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि विकास का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचे। एक समय था जब दिल्ली से घोषणाएं होती थी और उनको यहां पहुंचते पहुंचते दशकों लग जाते थे। आज हमारा चूरा चांदपुर, हमारा मणिपुर भी बाकी देश के साथ विकास कर रहा है। अब जैसे देश भर में गरीबों के लिए हमने पक्के घर बनाने की योजना शुरू की, इसका फायदा मणिपुर के भी हजारों परिवारों को मिला। यहां करीब 60,000 घर बन चुके हैं। इसी तरह इस क्षेत्र में पहले बिजली की कितनी समस्या होती थी। हमारी सरकार ने आपको इस परेशानी से मुक्ति दिलाने का प्रण लिया है। इसी का नतीजा है कि यहां मणिपुर में भी 1 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है। साथियों, हमारी माताओं बहनों को पानी के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें होती थी। इसके लिए हमने हर घर नल से जल स्कीम शुरू की। बीते सालों में 15 करोड़ से अधिक देशवासियों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। मणिपुर में तो 7-8 साल पहले तक सिर्फ 25-30 हजार घरों में ही पाइप से पानी आता था, लेकिन आज यहां 3.5 लाख से अधिक घरों में
नल से जल की सुविधा मिल रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द मणिपुर के हर परिवार के घर में पाइप से पानी आने लगेगा। साथियों, पहले के समय में पहाड़ों में, ट्राइबल एरियाज में अच्छे स्कूल कॉलेज, अच्छे अस्पताल, ये भी सपना होते थे। कोई बीमार हो जाए तो मरीज को अस्पताल पहुंचाते ही बहुत देर हो जाती थी। आज भारत सरकार के प्रयासों से स्थिति बदल रही है। अब चूराचांदपुरा में ही मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया है। यहां अब नए डॉक्टर भी बन रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हो रही है। आप जरा सोचिए, आजादी के अनेक दशकों तक मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। हमारी सरकार पीएम डिवाइन स्कीम के तहत 5 पहाड़ी जिलों में आधुनिक हेल्थ सर्विस विकसित कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत सरकार गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है। मणिपुर के भी करीब 2.5 लाख मरीजों ने इस योजना के जरिए अपना मुफ्त इलाज कराया है। अगर ये मुफ्त इलाज की सुविधा ना होती तो यहां मेरे गरीब भाई बहनों को अपने इलाज पर 350 करोड़ रुपए खुद के जेब से खर्च करने पड़ते। लेकिन ये सारा खर्च भारत सरकार ने उठाया है। वो इसलिए क्योंकि हर गरीब की चिंता को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है।
साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं मणिपुर के ट्राइबल नौजवानों के सपने और उनके संघर्षों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग समाधानों पर काम हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि गवर्नेंस की जो लोकल बॉडीज है उनको भी मजबूत किया जाए। इनके विकास के लिए उचित फंड्स की व्यवस्था भी की जा रही है। साथियों, आज हर ट्राइबल कम्युनिटी का विकास ये देश की प्राथमिकता है। पहली बार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चल रहा है। इसके तहत मणिपुर के 500 से ज्यादा गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। ट्राइबल एरियाज में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यहां मणिपुर में भी 18 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के आधुनिकीकरण से यहां के पहाड़ी जिलों में एजुकेशन की सुविधाएं बहुत अधिक बढ़ने वाली है। साथियों, मणिपुर का कल्चर नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है। सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके। साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं मणिपुर वासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अनमोल वचन व प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Prime Minister, for your valuable address. Your words have ignited hope and joy in the hearts of the people of Churachandpur. As our Honorable Prime Minister prepares to depart, let us all rise and conclude this memorable occasion with the